Good evening, everyone. Welcome to Android Study Jam. This is going to be a series of sessions, and today is the first one. During this session, you will learning about Android and how to build its application using Kotlin. If you are new to programming, there is no need to worry because we will be taking things from basics. Our Android lead Divyansh Boss will be carrying you through these sessions. Over to you, Divyansh Boss. Okay, so hello everyone. As Tejas told you, I am Divyansh Tak, your facilitator for today's introductory session on Android Study Gems and Kotlin. Okay, so let me share my screen to you guys. Is my screen is visible, Tejas? Yes, boss, it is Hello. visible. Yes, Okay. boss, yes, boss. Okay. So firstly, welcome all of you in our today's session. Now we should have to know that what is Android. So Android is basically an operating system which is specifically used in smartphones, tablets, smart televisions, etc. Now we will move towards our Android study jam session. Okay. So now what are Android study jams? So Android study jams are basically community organized groups and programs where we will together can build applications, and in this program we will learn that how you can, sorry for the interruption. Okay, so in this program you will get the experience that how you can start your journey in Android development field, how you can build different Android applications from scratch. Okay, now how can you start your journey with this program? So firstly, to start with this program you need to create a developer profile, and for that this is the link which provides here. By going on this link you can you can create your developer profile. Now what is the benefit for making this developer profile? Many of you have questioned that what we will get by making this profile. So after making this profile you can get a chance to collect up to 16 badges during this whole program, and to that badges you can showcase on your LinkedIn profile, and also on your Google developers profile, and make it much stronger. Okay, so now many of you also have questions that nowadays we have different website also. So why should we need Android application? So for them, let's just suppose I think everyone used WhatsApp. So let's just suppose WhatsApp is not an Android application and it is only a website, or maybe YouTube or Insta etc. Are not an Android application. They are only websites. Then every time when you want to check your messages, you want to watch some videos and some stuff like that, you should have to go to your website page again and again. So your, yeah, that's why life become much difficult. Yeah, so Android applications are the best way to interact with your users. Okay, now we will move again towards our Android study jam session. So how to proceed ahead? So firstly, you should have to download or install Android Studio on your device, and you can download it from your browser for
any operating system whichever you use, just like Windows, Linux, Ubuntu, or Mac OS. For everything you can found it. Okay, so these are some important links during our this program. First one is the main course link, Android Basics with Kotlin course, and second one is the link for Kotlin Playground, which is basically a online platform where you can write your code with Kotlin and run it also. Okay. So now equipment needed for each student in this program are a computer. Everyone should have a computer system, and he should have a proper internet connection, and then maybe this one is optional, that he have an Android device and USB cable, and after that he must have to download Android Studio in his system. So now you have question, what is Android Studio? So Android Studio is an IDE, integrated development environment. In simple words, it is basically a platform where you can write your code for build your Android applications, build layouts for that, and you can also test and run your Android applications here. For running your application, you can use a virtual device also here. Okay, and you can also run your application directly by connected it with your physical device, just like your Android phones. Okay, so now the overview of this session is look like that this in our course, uh, it consists of 6 units, and in 6 units we have 16 paths. For each pathways you have one quizzes, and after completing this quiz you will get one badge. So by completing this course you can get 16 badges and decorate your developer profile. Okay, so in this course you will learn basics of Android development with Kotlin programming language, and you can also build a collection of simple apps to start your journey as an Android developer. And prerequisites for this are two basic, means just only basic. You should have to know basic computer literacy and basic mathematical skills. And in this Android Jam program, mainly we will use this course. After some time, Tejas will share link of this course to you guys. Okay. Okay. So now overview of what you will learn in this program. So firstly, you will get to introduction of a programming language Kotlin, which is widely used in Android development field, and it is a modern and expressive programming language. Secondly, you can create your first Android application, and you can also build a basic layout for your Android application. Layout is basically a structure of a screen which shows in your application. Okay, means just like you use WhatsApp, yeah. So in your profile section or in your chat section there is a screen which is displayed to you. So the structure or design of that screen is called layout. In Android Studio we will mostly use layouts: relative layout, constraint layout, and linear layout. Okay, so in linear layout all the components, just like the buttons, images, are arranged in a linear way with each other. Okay, means you have an screen of an app, and all the components of that screen, just let's assume that you have a image on that screen and one button also.
then that image and button are arranged in a linear manner in horizontal direction or maybe in vertical direction according to whatever you want, whatever direction you want. Okay, now in relative layout, your components or views are arranged relatively with each other. Means your one component is arranged relative in a relative direction or relative distance with other component. And in last constraint layout, we will set our constraint by ourselves. Just like that, you want to make a button on your Android application screen. So if you set constraint layout, then you should have to set distance of that button from one edge of our screen, or from top of our screen, from bottom of our screen. So in constraint layout, we should have to describe its length, width, all things by ourselves only. Okay, and you will learn how can you add a button on your Android application, and then how to handle the uses of that button. Just like you make a button and you want that after you click it, your screen is changed, or maybe some uh, thing another, whatever you want by clicking on that button, we will learn that how to manage uses of that button also. Okay, Excuse me, then boss. Sorry to interrupt. yeah, Boss, yeah, Animesh Tejas. Sharma wants you to please repeat constant layout. Okay, so in constant layouts, you means as I told you before, in linear layout, in relative layout, all components are arranged with respect to each other. They have some relations with each other. But in constant layout, there are not any foundation of any type of relation between our components. We can freely set our components at our screen. Just like you want to set a button on your screen. Okay, so you just set the width of that button, then space of that button from your uh, topmost of your screen, then rightmost of your screen, bottom of your screen. So means all the sources are open for you to set constraints of that button, or the attributes of that button, like length, weight, etc. Is it clear, Animesh? Hello, am I audible? Yes, boss, you are audible. So is it clear, Animesh? Yes, sir. Okay, so we will move to forward. Yeah, so then you will learn when you get or take input from user. Means just like you are working with an application and you want to take some input from user, just like you want to take his email or password for give him authentication of your Android application. So in this course you will also learn that how can you take inputs from your user in our Android application. Okay, is it clear? Okay, then you will also learn how can we make a uh, scrollable list for our application. So by scrollable list means I think every one of you know that in WhatsApp, in chat section, there is a screen where all of our contacts are shown to us, and when we scroll down that screen, uh, means there is a large number of contact in our phone, so we cannot combine them all in one screen. So for that we use scrollable list or scrollable screen.
so that we can check out our all the contacts or on the messages in one screen. Okay, so you will also learn that how can you use that type of screen. For that we will use recycler view or list view, about which I will told you in uh, further. Okay, then you will learn how can you navigate between screens. So now we have, if you build an Android application, then it is general that you don't make an Android app of one screen only. There are many screens in your Android applications. So if you want to go from one screen to another screen, then in this session you will also learn that how can you move from one screen to another screen. Okay, then intro to navigation component. So you will also learn that what components are used for moving from one screen to another screen in our application. Okay, now why should you enroll in this study gems program? What are the benefits of this? Okay, so मतलब कि प्रॉफिट क्या हो रहा है आपको ये ज्वाइन करने का. ओके, सो by joining this program you will learn Android and Kotlin concepts, okay, from scratch, and you can also earn cool badges every time you complete a pathway, as I told you before. Then you can show off your certificate on your social media profiles, resume, and LinkedIn, which makes your profile stronger. That certificate you will get after completing whole the course or whole the pathways. After completing each quizzes you get one badge. So while you get 16 badges, then you get only that certificate, and you should have to earn all these 16 badges till 10. Okay, and you will also get a chance to build a real life working app that might get featured by Google. This is the certificate which you get in the end of this program. Okay, if you complete whole, if you completely complete this program or earn whole 16 badges, then only you will get this certificate, and you should have to do this till 10th of Jan. Now why we use Kotlin as development language? I think some of you know that we can also use Java for Android development, but Google is mostly preferred Kotlin over Java. So what is the reasons for that? I will tell you. So firstly, Kotlin is expressive and it is a modern language, means it is much similar with our real life language, and it is much expressive comparative to Java. And it was developed in 2010 by JetBrains, which is and it is also an open source language. Open source means anyone who want to contribute in this can contribute in its code. It's open for all type. Okay, you should have to just make a pull request if you want to change something in its code, and if they like, they can also merge that. Okay, so as I told you before, Google made Kotlin as first preference for developing apps. Now interoperability with Java. So basically interoperability means ability to share information or data like functions, classes, etc. with Java. I will also told you about function and classes further in this session. Okay, and it will also provide you null safety. So I will told you about null safety.
in deep further in this session. So for now, we will just skip this part. Okay. Are you guys are comfortable in English, or maybe I should use Hindi? If anyone has problem, then I have a question, boss. Sir, yeah. please switch over to Hindi. What? I have a question related to constant layout. Yeah. Does it have anything like Flexbox in, do we have anything like Flexbox in Kotlin? Yeah, we have Flexbox in Kotlin, but I don't able to understand and what is the relation of it with constraint layout. As you were talking about layout, like it does not depend on any other, that same concept like Flexbox. Yeah, that same concept like Flexbox, but it is not that type of exactly. Means flex in constraint layout, you will set structure of your screen. Okay, but Flexbox is not related to Android applications screens. Okay, you get it? Okay. Will we get the recording of this meet? Yeah, I you will get this. Means Okay, thank you. basically uh, you I think you guys are don't able to understand constraint layout properly, so I will also told you this in Hindi. बेसिकली कंस्ट्रेंट लेआउट मतलब कि अपना कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है आपकी, ठीक है, तो उसकी कोई स्क्रीन होगी, जैसे व्हाट्सअप हुआ, तो व्हाट्सअप में स्क्रीन होती है, तो उस स्क्रीन का कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर में जैसे कि व्हाट्सएप पे किसी स्क्रीन पे कोई बटन्स होते हैं, कोई टेक्स्ट होता है, कुछ भी होता है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होगा कि जैसे ही अपन कोई भी बटन बनाएंगे अपनी उस स्क्रीन पे या कोई इमेज लगाएंगे, कोई टेक्स्ट व्यू लगाएंगे, तो उसके लिए अपने को डायरेक्टली बस उस पर्टिकुलर व्यू का, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का एट्रीब्यूट सेट करना होगा कि उसकी राइट से डिस्टेंस क्या है, उसकी लेफ्ट से डिस्टेंस क्या है, टॉप से डिस्टेंस क्या है और बॉटम से डिस्टेंस क्या है। जबकि जो दूसरे लेआउट्स मैंने बताए थे, रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट, उनमें क्या होता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं और व्यूज होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि लीनियर लेआउट में हमारे जो भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि आपने दो बटन लगाए, एक इमेज लगाई अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, तो लीनियर लेआउट में क्या होगा कि वो लीनियरली अरेंज होंगे, मतलब या तो वो जितने भी कंपोनेंट है लीनियरली वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएंगे या लीनियरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगी उनकी जो भी पोजीशन होगी कंपोनेंट्स की, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगी। और रिलेटिव बॉस लेआउट में रिलेशन भी तो बॉस रिलेशन तो कांस्टेंट लेआउट में भी होगी ना? कंस्ट्रेंट लेआउट में होगी। कंस्ट्रेंट लेआउट में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली आपका जो लेआउट पेज है उसके एंड से होगी, तो दूसरे कंपोनेंट से नहीं होगी। यू गेट नहीं इट? बॉस, मैंने उसमें कुछ व्यूज बनाए हैं, तो ओके, मैं तो उसे कंस्टेंट कर देता हूँ, इसे एंड टू एंड ऑफ तो फिर स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ। हाँ, तो फिर वो तुम नहीं, मैं बता रहा हूँ, फिर वो तुम क्या करते हो, तुम है ना, एक जो तुम्हारा व्यू है उसको पहले एंड ऑफ द लेआउट, मतलब जैसे राइट साइड से उसको पहले कंस्ट्रेंट कर दिया और फिर उस वाले व्यू को दूसरे वाले व्यू से कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू मतलब ज्वाइन करते हो। मतलब तो बॉस अगर तुम यही तो इनडायरेक्टली देखो तो तुम्हारा जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ना, वो तो तुमने पहले डायरेक्टली जो एज है तुम्हारा पेज का उससे कनेक्ट किया है, ठीक है। तो हाँ। अगर तुम लीनियर लेआउट में जाओगे ना, तो तुमको जो तुम्हारा फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ना, उसको भी उस जो हमारा एंड ऑफ पेजेस है, मतलब जो हमारे कॉर्नर्स है पेज के, उससे कनेक्ट करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट लोगे तो आपको पहले है ना, जो आप कंपोनेंट बना रहे हो उसको आपको जो आपका एंड ऑफ पेज है या एंड ऑफ लेआउट है, तो उसके कॉर्नर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया होगा, जैसे जो आप जिस अकॉर्डिंग बोल रहे हो ना, तो आपने जो अपना दूसरा व्यू है उसको फर्स्ट व्यू के अकॉर्डिंग तो सेट कर लिया, बट वो एक्चुअली इस वजह से एरर नहीं दे रहा होगा आपको, क्योंकि आपका जो फर्स्ट व्यू है ना
वो आपने अपने जो लेआउट है उसके कॉर्नर से अटैच कर रखा है। बट लीनियर लेआउट में इसकी और रिलेटिव लेआउट में इसकी भी नीड नहीं होगी कि आपको उसको उसके कॉर्नर से अटैच करना पड़े, ठीक है। इससे उसमें तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन और हो गया, क्योंकि मैंने रिलेटिव लेआउट भी यूज किया हुआ है। तो ओके, उसके अंदर भी मतलब एक रिव्यू से दूसरे व्यू पे रिलेशन होता है। रिलेटिव लेआउट में तो होता ही है ना रिलेशन, वही तो मैं बोल हाँ, रहा हूँ कंस्ट्रेंट रिलेटिव। कंस्ट्रेंट में भी होता है। तो यही फिर मैं नहीं, डाउट आता है बार बार कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मतलब क्यों से अपन कभी कंस्ट्रेंट यूज करें या फिर कभी अपन रिलेटिव यूज करें। ये तुम सम एब्सोल्यूट पोजीशन की तरह होता है, मोर और उस काइंड ऑफ। देखो, सुनो एक बार ध्यान से, जो रिलेटिव लेआउट है उसमें तुमको जो तुम्हारा कंपोनेंट था, ठीक है, उसको है ना एजेस से कनेक्ट करने की नीड ही नहीं पड़ी, ठीक है। उसमें तुमने एक कंपोनेंट लगाया, उसी के अकॉर्डिंग तुमने अपना दूसरा कंपोनेंट सेट कर दिया, ठीक है। और अच्छा जो अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और जो तुम्हारा कंस्ट्रेंट लेआउट था उसमें तुमको अपना जो कंपोनेंट है उसको एंड ऑफ कॉर्नर ऑफ योर लेआउट के साथ अटैच करना पड़ेगा। जैसे कि तुमने उसकी विड्थ फिक्स कर दी अपने लेआउट के कॉर्नर के साथ 15 dp, तो वो फिक्स रहेगी। फिर उसके बाद दूसरा जो तुम्हारा कंपोनेंट है उसको अटैच कर सकते हो तुम उसके साथ। ओके, हाँ हाँ बॉस, ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू बॉस। ओके, okay. So now I will told you interesting facts about Kotlin. So 62% of developers have expressed interest in developing in Kotlin, which is fourth largest according to Stack Overflow survey. Okay, and 20% less time is spent on stabilization adapting Kotlin due to less null pointer exception. So null pointer exception is an error which sometimes comes in your code while you are working in Android Studio. I will told you in deep about this further in this session. Okay, and this is also a big benefit of Kotlin that with compared to Java, in Kotlin your line of code is too much reduced. As according to some statistics, 30% less code as compared to Java. Okay, so your line of code is reduced in Kotlin with compared to Java, and spent on reviews and maintenance is less. And now 70% of top 1,000 apps on Play Store are developed in Kotlin, and 60% professional Android developers are using Kotlin for now. So that's are the basic reasons for what mm, Google increasing Kotlin or give preference Kotlin over Java. And as I told you before, it is developed by JetBrains in 2010, and you can have Java and Kotlin code in one project. Means if you build one Android application project, then you can use Kotlin and Java both in one project, and you can also change or convert your Kotlin code in Java code also. I will told you this in deep after some time. Okay, so it is easily Kotlin is also easily mixed with Java code. As I told you before, you can share data just like your functions, classes, or variables with Java code of your Kotlin code. And it is a modern language. It is much safer and expressive. Now we will move towards variables. Okay, so basically Kotlin variables. Okay, so variables refers to a memory location which is used to store data. Basically you can take it as the name of memory space where we store data in our program. Just like you make a program in Kotlin language, so you have to store some data.
So for storing, you need some space or some memory location. So the name of that memory location is called variable. Okay. And in Kotlin, while we declared our variables, we used where and val keywords for that. Okay. So now you have a question that why we use two keywords, where or val. What is difference between them? And firstly, yeah, what is keyword? Yeah, so keyword is basically the predefined words in programming uh, which have some special purpose or special meaning. So in Kotlin, if you want to declare a variable, you need to use a keyword, and we have two types of keyword in Kotlin, where and val. So what is difference between these two? Okay, so firstly, if you want to fix the value of your variable, just like you make a variable name and you just want to fix its value so that further you cannot able to change its value. For that you use val keyword. And if you want to make a variable type which value you can further change, so for that you use where keyword. ठीक है, so this is the syntax of declaring a of making a variable in Kotlin. Firstly, you should have to write your keyword where or val. Okay, then you should have to give the name of that keyword. So you can give the name according to you, but there are some rules of that. Just like you cannot start the name of variable with any integer. You should have to start it with a character, or you can also start it with a special character underscore also. So this is the pattern or syntax of defining variable in Kotlin. Okay, ये डिफरेंस समझ में आ गया ना वेर एंड वेल के बीच का? किसी को कंफ्यूजन है इसमें कुछ? बॉस एक बार और बता दो इनका डिफरेंस है। ओके, देखो बेसिकली आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल बनाया, मतलब कि वेरिएबल्स में अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स होते हैं, ठीक है, डेटा का टाइप्स होता है। जैसे कि मान लो आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना चाह रहे हो, तो ये देखो नेम के आगे कॉलन के बाद मैंने डेटा टाइप बता रखा है वेरिएबल का, ठीक है, इसमें स्ट्रिंग लिख रखा होगा, विजिबल है? विजिबल Yes, है boss. ना स्ट्रिंग? हाँ, तो ये स्ट्रिंग क्या है? हमारा डेटा का टाइप है, मतलब कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं हमारे वेरिएबल में। जस्ट लाइक अगर आपको इंटीजर स्टोर करना है, इंटीजर वैल्यू -∞ to ∞ के बीच, तो फिर यहाँ पे ये जो डेटा टाइप है यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह इंट यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे आपने एक अभी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में हम बेसिकली लेटर्स, वर्ड्स और स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी यूज कर सकते हैं इस दो डबल कोट्स के बीच में, ठीक है। सो हमने इस स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे इस स्ट्रिंग की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया RTU से यहाँ पे, ओके। और फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो कि हमने जो कीवर्ड है इसको यूज डिक्लेयर करने में वो यूज किया है वेर, ठीक है। तो अगर आपने ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने में वेर कीवर्ड यूज किया है ना, तो आप इस वेरिएबल वैल्यू को अपने प्रोग्राम में आगे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अब ये इसकी वैल्यू को RTU से चेंज करके और मान लो ABC करना है या BTU करना है, कुछ भी करना है, तो आगे प्रोग्राम में आप वापस लिखोगे स्ट्रिंग और फिर इक्वल का साइन लगाओगे और फिर डबल कोट्स में जो भी स्ट्रिंग डालना चाहो आप अपनी वो डाल सकते हो इसकी वैल्यू चेंज करके, ओके। जबकि अगर आपने ये जो वेरिएबल है इसको वेल कीवर्ड के साथ अगर डिक्लेयर किया है ना, तो फिर आप इसकी वैल्यू को आपके प्रोग्राम में आगे भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो वो एरर दे देगा आपको। जैसे यहाँ पे आपने स्ट्रिंग की वैल्यू को RTU रखा है, ठीक है, तो अब आगे आप अपने प्रोग्राम में जाके और मान लो इसकी वैल्यू को BTU कर रहे हो या
कुछ भी ABC कर रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते, वो आपको एरर दे देगा क्योंकि आपने वेल कीवर्ड यूज किया है यहाँ। ठीक है, सो बेसिकली वेर के साथ वैल्यू चेंज हो सकती है एंड वेल के साथ वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ओके Boss, I have a doubt. या I have a doubt. या आस्क। Boss, can we also use const keyword instead of well? You can, yeah, you can use const keyword for fix the value of your variable, but in Kotlin we used only these two keywords, where and well. For Kotlin you cannot use that. Okay. हेलो बॉस, मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन ये कि जिस जो भी एकदम नया नया कोडिंग में जैसे कि मैं एकदम एकदम बिगिनर हूँ, मैंने अभी कोई लैंग्वेज सीखी नहीं और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक लैंग्वेज सीखने की, जैसे सी कर रहा हूँ, तो क्या वो भी कोटलिन ओके, सीख सकते हैं? फिर उसको पहले से कुछ एक आध लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जैसे आपने बताया था बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए कंप्यूटर में। बेसिक लिटरेसी का मतलब लैंग्वेजेस नहीं था, कंप्यूटर की बेसिक लिटरेसी मतलब आपको ये आना चाहिए ब्राउजर खोलना, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है। बट या इनिशियली अगर आप कॉटलिन के साथ स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा आपको मतलब इनिशियली हार्ड पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, और अभी मैं आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्लास का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो उन सबको थोड़ा कॉटलिन के साथ मतलब इनिशियली सीखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट इफ यू विल ट्राई देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। या सो मतलब इतना हार्ड नहीं है वेरिएबल्स अभी नॉर्मल, अगर आप C++ में यूज करोगे तो ये कीवर्ड्स वगैरह हाँ ठीक है आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे, जैसे वेर वेल का C++ में या सी में कोई कंसेप्ट नहीं होता है। बट जो बेसिक फंक्शनैलिटी वेरिएबल्स है तो वो कॉटलिन में भी होंगे, वो वेरिएबल जावा में भी होंगे, सी में होंगे, C++ मतलब कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो आप, तो बेसिक जो फंक्शनैलिटीज है वो तो सेम ही रहेगी, वेरिएबल सब में रहेंगे, फंक्शन सब में रहेंगे। तो मतलब इनिशियली थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हैं। ओके। और अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट फील्ड में आना है तो फिर तो आपको कॉटलिन और जावा सीखनी पड़ेगी ना, फिर आप C++ से तो काम नहीं चल सकता ना आपका। यस। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक बार के लिए जैसे कोई लैंग्वेज C++ जैसे या सी आपने स्टार्ट कर दी साइड बाय यस। साइड, यस। उससे आप कंसेप्ट समझते जा रहे हो और साथ में फिर कॉटलिन में अप्लाई करते जा, कॉटलिन को भी करते जा रहे हो, तो बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे आपके और एंड्रॉयड वाला पार्ट भी नहीं रुकेगा। यस, थैंक यू। ओके, बॉस, एक और तो क्वेश्चन था। हाँ, बॉस, जैसे मुझे अभी एंड्रॉयड शुरू करना है तो मैं जावा सीखूं या फिर कोटलिन? अच्छा, अभी मैंने आपको पहले ही बहुत सारे बेनिफिट्स बता चुका हूँ कॉटलिन के, तो और गूगल भी मोस्टली कॉटलिन को ही प्रेफर करता है, क्योंकि बेसिकली कॉटलिन में क्या हो रहा है, एक तो जो कोड है हमारा वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो लाइन ऑफ कोड्स है वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है बहुत, और जो हमारा कोड है वो एफिशिएंट भी बन जाता है। आप आगे जाके डेटा क्लासेस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो डेटा क्लासेस जो होती है वो जावा में उसका जो कोड होता है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और बड़ा होता है इन कंपेयर टू कॉटलिन। सो यू आई मतलब अगर इनिशियली आपको स्टार्ट करना है तो आप जावा के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज आती है, तो मतलब अगर आपको जावा आती है तो कॉटलिन सीखने में इतना प्रॉब्लमेटिक रहेगा नहीं फिर वो आपके लिए। बट या अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में है आगे, तो अभी के लिए तो स्कोप कॉटलिन का काफी बढ़ रहा है। बट मतलब जावा के भी है कुछ अप्स, जैसे कि जावा काफी ओल्ड ज्यादा ओल्ड है कंपेयर टू कॉटलिन इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो कुछ लाइब्रेरीज है जो अभी भी एंड्रॉयड की जावा में ही है, बट या फॉर नाउ कॉटलिन इज मच बेटर।
इसकी ओके, जो थैंक यू बॉस। एडवांटेजेस है वो बता ही चुका हूँ मैं आपको क्यों बेटर है। ओके, थैंक यू बॉस। या so now I will told you about functions in Kotlin. Okay, so function is basically a reusable piece of code that is used to perform a specific task in our program. Means every time we want to do that task, we just have to call that function and we can perform that. Okay, so there are 3 steps for making functions in our program. First step, declaration of our function, then definition of our function, and then calling of our function. Now function in Kotlin. So in Kotlin programming language, if you want to make a function, you should have to use a keyword fun for that. Okay, fun. ठीक है, फन कीवर्ड यूज करेंगे हम बेसिकली कॉटलिन में फंक्शन। देन यू विल गिव द नेम ऑफ योर फंक्शन। तो नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था, बस इंटीजर वैल्यू से या न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हियर वी विल गिव दैट नेम सम। ओके, then in these brackets we can provide the parameters of our functions, means the variables which we are going to use in our function. Okay, and after that we will describe the return type of our function. इसमें आपको दिख रहा होगा int 2 कॉलन के बाद वो हमारा रिटर्न टाइप है। तो now basically you have question what is a return type. So return type is basically the type of our result which we get from our function. Okay, in third line you can see that there is written a plus b. Okay, so this return keyword take the value of our result and then give it from where our function is calling. So as you can see that a is integer. Okay, and b is also integer, and our result is a plus b. So if we add two integers, then it is basic that we will also get an integer as our answer. Okay, so for this function we have our return type int. Okay, and then there is a word println. So this is basically a output function which we used for take output in our Kotlin programming language. Okay, so everything which we write between these two double quotes will get us as output of our program. Okay, so this is the basic way of declaration and definition of function in our Kotlin programming language. Now nullable types in Kotlin. So as you know that अभी थोड़े टाइम पहले काफी कॉन्सेप्ट्स आए थे जैसे नल सेफ्टी और नलेबिलिटी। तो मैंने कहा था कि इनके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको। अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मेरे से कि कॉटलिन क्यों यूज करे, उसका क्या एडवांटेज है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कॉटलिन जो है वो हमको नल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर आप जावा में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या एक वेरिएबल बनाया जैसे आपने जावा में, तो बाय डिफॉल्ट इट्स की वैल्यू जावा में नल होती है। ठीक है, जब तक आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया या कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। जैसे जस्ट लाइक यू मेक ए वेरिएबल स्ट्रिंग एंड यू डोंट इनिशियलाइज इट और डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू इन दिस, so it is by default null in Java, but in Kotlin it is by default not null. Okay, so अगर आपने एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग और उसमें आपने कोई वैल्यू पास नहीं कराई, आरटीयू नहीं लिखा या कोई दूसरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया ए नाम रख के और उसमें भी कोई वैल्यू पास नहीं कराई, तो कॉटलिन में वो बाय डिफॉल्ट नॉट नल ही रहता है। अगर आपको उसको नल बनाना है वेरिएबल को, देन यू शुड हैव टू यूज ए स्पेशल कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क अहेड ऑफ दैट। ओके, तो जैसे कि इस स्ट्रिंग के आगे अब अपन ने क्वेश्चन मार्क लगाया है,
तभी ये नल हुआ है। बाकी बाय डिफॉल्ट इन कॉटलिन वेरिएबल्स आर नॉट नल। सो ये नॉट नल होने से अब आपने को बेनिफिट क्या हो रहा है, तो जब हम आगे देखेंगे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं तो मैनी टाइम्स वी गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शंस because we just make a variable and we didn't assign any value in that, and after some time in our code we are just going to access that variable. So hello, am I audible? Yes, boss. के इको आ रहा था, किसी का शायद माइक ऑन है तो वो ऑफ कर दे। ओके, सो बेसिकली मतलब जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है वो कॉटलिन में काफी कम हो जाता है, तो नल सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारे वेरिएबल्स है वो नॉट नल है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को काफी रिड्यूस कर देती है वो चीज। ओके, so now dealing with nullable types, so as I told you before कि नॉट नल होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो इसमें हमने अपने स्ट्रिंग को नल बनाने के लिए उसके आगे स्पेशल कैरेक्टर यूज किया क्वेश्चन मार्क, तो अभी वो नल हो चुका है। एंड उसके आगे हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया है। सो बेसिकली इफ स्टेटमेंट्स आर ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट which in which we check our code for a condition. You can see in these two parentheses we just write our condition as not equals to null. Okay, so अभी इसमें हमने जो हमारा स्ट्रिंग है s उसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो वो अभी के लिए नल है। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये जो दो कर्ली ब्रेसेस है ये हमारी इफ की बॉडी है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर हमारा कोड जो है वो बॉडी में जाएगा ही नहीं इफ की, ठीक है। मतलब इफ एक स्टेटमेंट होता है बेसिकली प्रोग्रामिंग में, वो आपको ऐसा नहीं है कि कॉटलिन में मिलेगा, वो जावा में भी मिलेगा, C++ में भी मिलेगा, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट के साथ हमको ब्रैकेट्स में उसके साथ कंडीशन लिखनी होती है, और अगर वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तभी हमारा कोड इफ की बॉडी में जाएगा, वरना कोड इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि नल डिक्लेयर किया है हमने अपने वेरिएबल को, तो ये हमारा कोड इसमें इफ की बॉडी में नहीं जाएगा। ओके, सो हैव ए नाइस कॉटलिन गाइस। नाउ I will show you by writing some code on our Kotlin playground. Okay. So this is our Kotlin playground. You can write code for Kotlin programming language and you can also run that here. So basically अभी तक अपन ने जितने भी कंसेप्ट पढ़े, जैसे वेरिएबल पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, तो उन सब के लिए अभी मैं आपको एक कोड लिख के बताता हूँ जिससे कि आप उनको रिलेट कर सकें और प्रॉपरली समझ सकें, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पे आपको एक लाइन ऑफ कोड पहले से लिखा हुआ दिख रहा होगा, फन मेन। ओके, सो दिस इज मेन फंक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम। किसी भी लैंग्वेज में अपन कभी भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो फर्स्टली हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो हमको एक फंक्शन मेन फंक्शन तो बनाना ही पड़ता है अपने प्रोग्राम में। ओके, तो ये मेन फंक्शन बना लिया है हमने, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट ही दिया हुआ है इस प्लेग्राउंड में अपने को मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन बनाना नेसेसरी है क्योंकि हमारा कोड जब हम रन करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही मेन फंक्शन से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का। ओके, तो अभी जैसे कि मान लो वेरिएबल्स पढ़ा था हमने, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं वेर, उसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं अपनी इच्छा से, जैसे ए रख दिया मैंने, ठीक है। अभी इसका टाइप बताएंगे, तो मान लो कि हम इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का बनाने के लिए इंट कीवर्ड यूज करना पड़ता है अपने, ठीक है। स्ट्रिंग का बना रहे थे तो स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, इंटीजर टाइप का बना रहे हैं तो इंटीजर यूज कर रहे हैं, ठीक है।
इसको कुछ भी वैल्यू असाइन कर दी हमने, मान लो कि ए को अपने 5 वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। और अभी हम अपना एक और वेरिएबल बनाते हैं इसके नीचे, ठीक है। वेरिएबल, इसको नाम दे देते हैं बी। ये भी चलो इसको स्ट्रिंग टाइप का रख लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप का कर दिया हमने, और इसको वैल्यू असाइन कर दी हमने। ये ए को 5 असाइन की थी, बी को वैल्यू असाइन कर दी। स्ट्रिंग का मैंने बताया था, कुछ भी लिख रहे हो डबल कोट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो इसको हमने लिख दिया कुछ भी RTU ही लिख दिया, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। और एक और वेरिएबल बना दिया हमने सी, ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इसको वैल्यू असाइन कर दी 6, ठीक है। अब हम हमारा प्रोग्राम लिखेंगे आगे, ठीक है। तो अब मान लो कि हमको एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक वैल्यू प्रिंट करानी है। प्रिंट बताया था मैंने आपको, आउटपुट लेने के लिए यूज करते हैं, आउटपुट फंक्शन है एक, ठीक है। तो हमने प्रिंट एलन डाला यहाँ, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दी, जैसे कि हमको वैल्यू चाहिए, मान लो ये डबल कोट्स लगाए, हमको मान लो वैल्यू चाहिए यहाँ पे सी की अपने, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पे कॉटलिन में आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको एक्सेस करना है, तो स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं हम, एक $साइन, ओके। तो $साइन लगाया, और उसके आगे सी की वैल्यू चाहिए तो सी लिख दिया, ठीक है। ये हमारा, अब हम इसको रन करके देखेंगे तो ये हमको सी की वैल्यू दे देगा, ठीक है। 6 दे दी इसने सी की वैल्यू, ठीक है। अब मान लो कि हम ये जो हमारा ए है उसको वेर की जगह वेल टाइप का डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। ये हमने वेल टाइप का डिक्लेयर कर दिया इसको। और अब हम ए की जो वैल्यू है यहाँ पे नीचे लाके इसको चेंज करके 5 की जगह 6 कर रहे हैं, ठीक है। 6 कर दिया ए को। अब हम जब अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमको एरर देगा, क्योंकि वेल है तो हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग आवर होल प्रोग्राम, ओके। तो अभी ये रन किया तो ये देखो वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड, ओके। और अगर हम इसको वेल की जगह वेर कर देते हैं, ठीक है, वेर कर दिया, अभी ए इक्वल टू 6 है, अभी रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा, और ये 6 वैल्यू दे दी। यहाँ ए की वैल्यू 5 थी, बट नीचे हमने चेंज की तो वो 6 दे दिया अपने को, ठीक है। सॉरी, ये सी लिखा हुआ था वहाँ, हाँ अभी ये कर रहा हूँ मैं, तो भी ये 6 ही देगा क्योंकि सी और ए की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल्स वाला। अभी हम फंक्शन वाला कंसेप्ट देखेंगे। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन की वर्ड लगाया आगे, फंक्शन का नाम मान लो हम दे देते हैं ABC दे दिया, ठीक है, कुछ भी। अब पैरामीटर्स हमको इस फंक्शन में कुछ यूज करने हैं, मतलब कि कुछ वेरिएबल्स चाहिए हमको इस फंक्शन के लिए। तो हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर टाइप के ले लेते हैं, ठीक है। एक तो x ले लिया, और एक हम ले लेते हैं y, ठीक है। y ले लिया एक हमने, इसको भी इंटीजर टाइप का बना देते हैं, ठीक है। तो ये y हो गया हमारा इंटीजर टाइप का, 2 पैरामीटर्स हो गए फंक्शन के। अब बॉडी बनाएंगे हम अपने फंक्शन की, यहाँ रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप अभी मान लो हमको इसका रिजल्ट चाहिए एज ए इंटीजर ही मान लो, ठीक है। तो रिटर्न टाइप भी इसका हम इंटीजर ही डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस फंक्शन में जो हमारा रिजल्ट है वो इंटीजर टाइप का मिलेगा अपने को, ये अपन ने पहले से डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम इंटीजर टाइप का ही, ठीक है, सी नाम दे देते हैं उसको, है ना। और ये टाइप है इसका इन, ठीक है। इन टाइप का वेरिएबल बना लिया सी, और इसको हमको इनिशियलाइज करने की नीड नहीं है अभी, क्योंकि सी की वैल्यू, चलो ठीक है, हम इस सी की वैल्यू को भी यूज कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो 7 से इनिशियलाइज कर दिया सी को हमने, ठीक है, 7, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, रिटर्न कराते हैं, रिटर्न कराएंगे जो हमको इस फंक्शन से रिजल्ट चाहिए। तो मान लो हमको इस फंक्शन से रिजल्ट चाहिए x + y +
जेड कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि सी तो हम बना चुके हैं ना पहले। जेड कर दिया, तो इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज ए रिजल्ट चाहिए अपने को, तो ये एज ए रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगा के लिख दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपन ने। अब यहाँ पे हमने को फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि फंक्शन को मेक करने के अब हमारे प्रोग्राम में 3 स्टेप्स होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। और फंक्शन डिक्लेरेशन की नीड तभी होती है जब हम अपने फंक्शन को फंक्शन मतलब फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फंक्शन कॉलिंग के बाद असाइन करें। अगर हमने फंक्शन को कॉलिंग से पहले डिफाइन कर दिया है तो डिक्लेरेशन की फिर नीड नहीं रहती है, ठीक है। तो अब बेसिकली बस यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं अपने फंक्शन की वैल्यू को और उसको स्टोर करा लेते हैं किसी वेरिएबल में। मान लो एक डी वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का ही, ठीक है, और उसमें स्टोर कर देंगे हम अपने फंक्शन वैल्यू, ठीक है। तो ये फंक्शन अब हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, और एज ए पैरामीटर यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स पास किए थे, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज चाहिए होगी हमको यहाँ पे कॉलिंग के टाइम। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू को हम ए एंड बी की वैल्यू पास करा देते हैं एक्स एंड वाई की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो उसकी वैल्यू a की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी और y की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एंड इन द एंड हम प्रिंट करा देते हैं अपना, ठीक है। डॉलर कीवर्ड बताया था आपको वैल्यू एक्सेस करने के लिए, डी प्रिंट करा देंगे हम अपना, ठीक है। इसको अभी के लिए हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है अपने को, ठीक है। अभी ये प्रिंट नहीं करा रहे अपन, केवल ये प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो डी प्रिंट करा देते हैं हम अपना, एक सेकेंड, थोड़ा सा एरर आ रहा है। ओके सॉरी सॉरी, वो इंटीजर यहाँ पे बी को हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था ना, इस वजह से एरर दे रहा है वो। तो यहाँ तो बी जो है हमारी स्ट्रिंग है और यहाँ पे अपने ने वाई को इंटीजर बनाया है, तो इंटीजर को कभी स्ट्रिंग के बराबर थोड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ बी की जगह अपन सी पास कराएंगे, ठीक है, क्योंकि बी जो था हमारा स्ट्रिंग था और वाई इंटीजर था, तो उन दोनों की वैल्यू को इक्वल नहीं कर सकते ना अपन। तो अब जो सी है उसकी वैल्यू ले लेगा वाई, ठीक है। अब अपन अपने प्रोग्राम को रन करा देंगे। तो ये एक सेकेंड, डॉलर स्पेस आ गया है गलती से, ठीक है। तो ये 18 दे दिया इसने अपने को एज ए रिजल्ट। तो आप काउंट करके देख लो, ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 6 और 5 11 और 7 18, ठीक है। तो बेसिकली यही मेन कंसेप्ट है। अभी के लिए आज हमारा टाइम भी काफी हो चुका है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। So I think now you can relate functions and variables after writing this code. किसी को कुछ इशू है इस कोड में, या फंक्शन कैसे कुछ बना रहे हैं, वेरिएबल्स कैसे, वैल्यूज कैसे असाइन हो रही है, कुछ भी? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है सबको सब कुछ? अगर प्रॉब्लम है आपको तो अब आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर हम अपना सेशन आज का एंड करते हैं, अब टाइम भी काफी हो चुका है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है कि कॉटलिन को क्या इंस्टॉल कर सकते हैं या ब्राउजर पे यूज करना पड़ेगा?
बेसिकली ये प्लेग्राउंड था कॉटलिन का, जिस पे हम कॉटलिन को रन करवा रहे थे। तो आप जरूरी नहीं है कि ब्राउजर पे ही यूज करें, ऑफलाइन आईडीज भी होते हैं, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं कॉटलिन के लिए किसी भी आईडी को, और फिर उस पे भी अपना कोड रन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ब्राउजर ही यूज करना पड़ेगा। और किसी को कुछ नहीं पूछना, फिर एंड करें हम अपना आज का सेशन। Yes, but Rajat has his hand raised, so I guess he has a doubt. So, like Vishal and Rajat, if you have any doubt, you may Okay. ask right now, Yeah, you can ask or Vishal and then Rajat if you we'll be have at. any type of doubt. Yeah. If your mic is not have permission, then you can write your problem on chat box. Rajat. एंड्रॉइड स्टूडियो में अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन या कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है ना, जब तक ये कोटलिन ना सीख ले प्लेग्राउंड से और डॉक से। नहीं, एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको सेटअप करना पड़ेगा। पहले तो आपको जेडीके का सेटअप करना पड़ेगा इंस्टॉल करके। उसके जस्ट लिए मैंने हम डाउनलोड कर आपको लिया, अब उसको चालू नहीं किया मैंने कुछ अभी, वो ये फिर जेडीके वेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा इसलिए। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जावा डेवलपमेंट किट होता है जेडीके, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसका एनवायरनमेंट पाथ भी सेटअप करना पड़ेगा आपके डिवाइस में। उसके लिए हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसमें से देख के और इजीली कर सकते हैं इंस्टॉल। मतलब फर्स्टली आपको जेडीके इंस्टॉल करके और उसका पाथ सेटअप करना पड़ेगा, और उसके बाद आप फिर डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो उसको। मैं इसके लिए कह रहा था कि जब तक कोटलिन की बेसिक्स कवर ना कर ले प्लेग्राउंड और डॉक से, तब तक उसकी कोई जरूरत थोड़ी ना है अपन को एंड्रॉइड स्टूडियो की। नहीं, एंड्रॉयड स्टूडियो से तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज है ना उसका, तो वो एक आईडी है, एक प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। कॉटलिन तो अपन एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए एज ए लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो आपको केवल कॉटलिन प्रोग्रामिंग करनी है इनिशियली, तभी एंड्रॉयड स्टूडियो की यूज नहीं है। अगर आपको कॉटलिन प्रोग्रामिंग के साथ साथ में ही कुछ स्मॉल एप्लीकेशंस वगैरह बनानी है, तो फिर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की नीड पड़ेगी। रजत, बेसिकली अगर आप या तो आप अपने ऐप को लिंक्डइन पे डाल के शो करा सकते हो, मतलब कोई वीडियो वगैरह डाल सकते हो, तो उससे आपका ऐप रिप्रेजेंट हो जाएगा कि आपने ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाई है। बाकी वरना तो आपको अगर और लोगों के लिए प्रोवाइड कराना है, तो फिर तो आपको प्ले स्टोर पे डालना पड़ेगा, या फिर आपके कोई कांटेक्ट में है तो आप बंडल एपीके जनरेट करके और शेयर भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस। बट वो आप उन्हीं को शेयर कर सकते हैं, जैसे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कर दिया, या आपने ईमेल के थ्रू कर दिया, तो वैसे शेयर कर सकते हैं जिनसे आपका कांटेक्ट है उनको सिर्फ।
Okay, so I think we should end this meet now. कल है ये मीटिंग? नेक्स्ट सेशन जब भी होगा आपको रेस्पेक्टिव ग्रुप्स जो है हमारे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. ओके. और आपका एक व्हाट्सएप नंबर और प्रोवाइड कर दो, कुछ पूछना होगा तो पूछ लूंगा फिर मैं. हाँ, व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ मैं चैट बॉक्स में अपने. ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर डाल दिया मैंने. आपको और कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे. आई डोंट प्रेफर कॉलिंग. हाँ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे आपको सेशन का. ओके, सो बाय गाइस. You can leave this meet now.